See, this is a very important point. Are you getting the meaning of that? Party system became federal. Our constitution was federal since 1950s. Society has always been federal. But how party system became federal? When? Because of coalition government, because the various regional parties, they have formed the government. Therefore, rise of regional parties was better for the federal government, and to some extent it was better for the unity and integrity of India too. Because Rajni Kothari said one thing very interestingly. Next point. हम सब कास्ट पे बताएंगे ही आपको, कास्ट तो बताना है, और अभी पार्टी का आपको बता देंगे. बाकी जो फेडरलिज्म को बताया है, इज इट अंडरस्टैंडेबल, बता देंगे आगे आपको. हाँ, नहीं कहीं भी कोई क्वेश्चन आप बताओ. यस यस, कैसे हम बताओ कैसे लिखते हैं. देखो टाइम एंड अगेन, अब पहले तो आप एक बार मेरा टेस्ट सीरीज अब देख लेना, इस बार जो भी फिनिश हुई है. टाइम अगेन व्हाट वी पॉइंट आउट, रीड बिटवीन द लाइंस फर्स्ट. अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है. और मैं कई बार देखे ट्रिक भी आपको बताता हूँ. इफ यू आर गेटिंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम डेमोक्रेसी, रिमेंबर यू हैव टू राइट डिलिबरेटिव पार्टिसिपेटिव. कंटेम्प्रेरी पार्ट है. सिंपल थिंग, how we can minimize the power of a state with the constitutionalism, point number 1. And that is the beginning of a democracy, where we have limited the power of a state. Second point, but don't you think that this is merely procedural democracy, electoral democracy? If we are limiting the power of a state, it is a procedural democracy, and that is the point. Unless there is a social equality, economic equality, how we can imagine about the better democracy? That is a point. After 1970s onwards, there was a improvement or modification in the classical liberal theory of democracy, and then it came in form of a participative, deliberative. Because a Marxist model of democracy was not democratic at all, because they believe in one-party dictatorship, although they provided social economic equality. But one-party dictatorship was not accepted. But here, in case of a deliberative participative, they made a balance, and they means there must be social economic equality. They are opposing capitalism, but same time they are not compromising with the democratic institutions. हो गया आपका आंसर? अरे whenever पहली बात देखो, स्कॉलर के पीछे मत पढ़ो, आइडिया के पीछे पढ़ो. संकल्प बार बार मैं आपको डोंट लिव इन मिसनोमर. Ideas analysis is more important. Whenever you are talking of a liberal, you can write any scholar from Locke to Macpherson. Even when procedural democracy, Schumpeter, ढाल किसी का भी नाम लिखो आप. And whenever deliberative, Dreisach, and then Habermas, किसी का भी आप नाम लिख दो. Participative में Macpherson नहीं है, and then you can Coral Petman. नाम तो I can tell you number of names, but only you mention the name if you remember in bracket. What is more important, आप देखो मैं बता, एनालिसिस कि लास्ट में आपको देख जाए कि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ इसके पास एनालिसिस है. देयरफॉर क्वेश्चन इज अपीयर सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड. हाँ अरे यार वही तो बात है. लेट अस सी इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी व्हाट इज हैपनिंग. देयर इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी, इट इज इलेक्टोरल. अच्छा मैंने थियरी बताया, एक कॉपी भी आप लेके देख लेना. एक टू now it is turning out to be electoral democracy. Therefore, what is the problem? Contemporary democracy is not moving towards participatory and deliberative. Making of theory and their practice, there is a gap between that. And that is the point in contemporary democracy, first past the post system. And that is the point what Switzerland is adopting, referendum, recall, plebiscite. But that is not sufficient unless we are not controlling the unleashing power of capitalism. ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म, दैट इज कंप्रोमाइजिंग विद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज राइजिंग, द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्पोरेट हाउस इज राइजिंग. वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर आवर लाइफ. सो हाउ इट मीन्स इन, इफ यू रिमेंबर इन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव, जो इन थियरी पढ़ा होगा जिन्होंने, मैंने बहुत एग्जाम्पल है. व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी? पैराडॉक्स. आई कैन चूज द फाइनेंस मिनिस्टर, नॉट द ओनर ऑफ माई कंपनी. Paradox. I can choose the prime minister but not husband.
इज इट डेमोक्रेसी? यहीं पे फोकस की बात आती है। तो बात तो सब वही लिखनी है, यू नीड अंडरस्टैंडिंग। इसलिए कई बार क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग आपको है, डेमोक्रेसी मतलब पावर क्या है, थियरी, इक्वलिटी क्या है। अब देखो अफर्मेटिव एक्शन देखने में कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्वलिटी, अफर्मेटिव एक्शन वर्सेस इफिशिएंसी, अफर्मेटिव एक्शन वर्सेस इक्वलिटी, अफर्मेटिव एक्शन वर्सेस कंपटीशन, इशूज में आप लिखते हो ना। अभी आप नहीं लिखोगे रिजर्वेशन की उन्होंने मराठा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कहानियां हैं ये। डिस्कस विद एन आर्गूमेंट, और कॉपी आप खोल के देखना, सारे आर्गूमेंट मैंने आपको बता रखे हैं, आइडिया चलता है। इसमें एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, आइडियाज आपको डेवलप होने चाहिए। ये बात तो मैं लगातार कहता रहा हूँ, आइडियाज होने चाहिए ना, स्कॉलर के पीछे क्यों भागते हो? जैसे प्लेटो पे क्वेश्चन आ जाए या सोशलिज्म पे आ जाए, मार्क्सिज्म पे आ जाए, ठीक है, आदत होती है नहीं ऐसी आदत छोड़ दो, ऐसी आदत, ये आदत खतरनाक है, बदल डालो। वट टाइम आपको लगता होगा क्या, यू सेड दैट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स फॉरेन पॉलिसी इज प्योरली अप्लाइड, यहाँ तो अप्लाइड करना ही करना है, थियरी भी अप्लाइड है। अब देखो टाइम एंड अगेन व्हाट वी आर इंसिस्टिंग दैट वी आर डिवोटिंग 20 days फॉर प्लेटो। प्लेटो पागल हो गया होगा ऊपर बैठ के कि मेरे लोग इतने भक्त हो गए हैं, 20 दिन प्लेटो पढ़ रहे हैं, मीनिंगलेस। और कई बार तो मैं शेयर करता हूँ, इंजीनियर कैसे ऐसी गलती कर सकता है? सम टाइम भाई यहाँ पे तो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर कैसे ऐसी गलती कर सकता है? अरे एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन कैसे आएगी? अंडरस्टैंडिंग से। आपको विषय दिखना शुरू हो जाए ना, हर जगह पॉलिटिकल साइंस तो आपने पढ़ा है, नोट्स में है तो ठीक है, रट लिया है, पढ़ा नहीं है, जैसे क्वेश्चन घूमेगा घूम जाओगे। अब देयर इज क्वेश्चन, फैसिज्म इज हैविंग एम्बिवेलेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन? ठीक है, हिस्ट्री नॉट थियरी, हिस्ट्री, हिस्टोरिकली और करेक्ट। अरे सिंपल सी बात है, यू रिमेंबर कारपोरेट स्टेट? कारपोरेट स्टेट में बताया कि नहीं बताया? थियरी वाले भूल गए, कॉपी आप लोग देख लेना, आप तो संकल्प थियरी में थे नहीं, थियरी कॉपी आप देख लेना। आई हैव डील विद कॉर्पोरेट स्टेट, व्हाट इज प्रॉब्लम? बिकॉज द बेसिक ऑफ फैसिज्म, मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस एक बेसिक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। बेसिक ऑफ फैसिज्म इज दैट देयर इज फैसिज्म बिलीव इन एलिटिज्म, people are not same, people aren't equal. If people are not same, people are not equal, they believe in personality cult. So leadership are born genius, this is against the basic essence of democracy, number one. So you have to write the argument, not the incident. Second point, but they had a dilemma. Once they were finishing democracy because their idea was entirely different from democracy. Only few people are visionary, rest of the people are masses, followers. That is against the basic idea for democracy, because democracy believes that everyone is equally intelligent, everyone is having the equal dignity, premise of democracy. But the problem is that they want to make a corporate state, and therefore what they had to show that they are having truly democracy. And corporate state means representation of corporate houses in the national parliament. So parliament was not elected. कॉपी चेक करके देख लेना, कारपोरेट स्टेट में लिखवा रखा है, जिन्होंने थियरी पढ़ा होगा उन्होंने। अब देखो ऐसा आया है, वी नीड क्लियरिटी। जब क्लियरिटी नहीं होगी तो हम हिस्ट्री पे जाएंगे या तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब थियरी अगर बता देंगे, और बार बार कहते हैं क्वेश्चन के बाद डिस्कस, एग्जाम के बाद क्वेश्चन डिस्कस नहीं होना चाहिए, पहले बता देना चाहिए कि आने वाला है। तब तो टीचर का मतलब ये होता है ना, क्या एग्जाम के आने के बाद मैं कहूं कि ये सवाल हमने पढ़ाया था, तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। तो यही तो मामला है, पूरा अप्लाइड है, पूरा यूपीएससी ही अप्लाइड है। हाँ, कारपोरेट स्टेट है, फैसिज्म का फीचर आप नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं पढ़ा होगा तो नोट्स में देख लेना, और जो इतना मोटा नोट्स होगा उसमें ही देख लेना, उसमें सब चीज होगा, यही नहीं होगा केवल। दिस इज अप्रोच, ये तो अप्रोच होता है। नहीं आएगा, दो आया है, ऐसा मैंने एक नहीं, एक जीएस मिल का इनडायरेक्टली, एक हॉब्स का है, मतलब उस पर 10 मार्कर का है, जीएस मिल का 15 मार्कर का है।
तो मैं शुरू को एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम जा रहा है ना, तो क्या हाँ अप्लाइड ही तो है। रॉल्स थियरी में है, थिंकर में थोड़े है, तो रॉल्स तो थियरी में है। तो अच्छा आप हम इसके ऊपर तो फिर उसके बाद आएंगे तो बता देंगे आपको। थियरी जैसे थियरी पढ़ रखा है एक बार देख लेना। हाँ तो थियरी फिर बता दूंगा, फिर आप डोंट वरी, आपका पूरा हो जाएगा। क्या लिखा था आपने जब कमिंग ओवर द टॉपिक? और देखिए दो तरीके, जैसे आपने हमने आपको इतना पतला नोट्स दिया है, लोगों के पास इतने इतने मोटे नोट्स, अगर इतने में ही सारे क्वेश्चन, चेकिंग का तो यही तरीका होता है ना, गेट द नोट्स, इतने में ही अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है और कहीं पॉलिटिकल थ्योरी के देखना है टॉप, तो इतना बढ़ने की क्या जरूरत है? कई बार मैं देख के दंग रह जाता हूं कि इंजीनियर भी बात मानने को तैयार नहीं होता। तो दिन आई हम कैसे भाई कैसे मैनेजर हैं लोग। मतलब वो एक ही एग्जाम्पल ना कि दैट इज अ प्रोफेशनलिज्म। मगर इतने से आपको सारी चीज मिल जा रही है तो इतना आप क्यों पढ़ोगे? इसलिए कि नाउ यू कैन राइट। मतलब क्या लिखा आपने? हाँ फेडरल लिख रहे, इबन यू कैन राइट, इबन पार्टी सिस्टम बिकेम फेडरल and even Rajni Kothari pointed out that regional parties, Rajni Kothari pointed out that regional parties don't want to secede from India, and they are fighting for their representation or power sharing. They are fighting for their representation in bracket power sharing. They are fighting for their representation or in bracket power sharing. Rather than disintegrating the political system. Rather than disintegrating the political system. Disintegrating the political system. तो ये बात, but you can write the same. अब अगर आपको याद होगा that I have repeated in parliamentary form and federal form of government because things are very much connected. You can write next point. But the impact of regional parties was more negative for the parliamentary government impact of regional parties is more negative for the parliamentary form of government, which created instability in the union government, or which created instability in the government, either in union or in state, which created instability in the government. Instability in the government. So this was the rise of regional parties. And next point you can write. Due to rising impact of regional parties, union government set up Sarkariya Commission
Due to rising impact of regional parties, union government set up Sarkariya Commission. Sarkariya Commission for fulfilling the demand of autonomy of states. ये कूलिंग हो रही है कि नहीं इससे? For fulfilling the demand of autonomy of state. For fulfilling the demand of autonomy of state. Demand of autonomy of state. But again, coming back to national party, this was the rise of regional party. So there were various parties, various types of regional party, and this was the impact of a regional party over economic system, political system. So overall, it was a positive for Indian democracy. It was not negative at all. Although because of regional parties, there was more representation of regions in the union. But there's some sort of a problem too. But it was a you know that अगर GS में अगर क्वेश्चन देखोगे, even it is said that by 90s, what was the political reason which prevented the misuse of Article 356? Rise of regional parties, emergence of federal party system. This was very strong political reason. Later, which was justified in the Bomai case. But let us see, now coming back to the evolution of national parties. So you can change the heading, because this one is clear. Next heading. Yes. Yeah. But the impact of regional parties was more negative for parliamentary form of government. Yes. हाँ, देखो why? Because when there was a regional party, coalition government, and we know that coalition government automatically means no government can survive for 5 years in the office because of the changing of the coalition partner, and that even you can give the fact between 96 to 99 there was a 3 general election held in India, and here you can compare in British parliamentary form of government, which I have told you earlier. In British parliamentary form of government, there is a principle. There is a government of Her Majesty and the opposition of Her Majesty. Normally, parliamentary form of government work well in presence of a opposition party, but in case of coalition government, everyone is in opposition. Everyone is in opposition, and what happens in one dominated party system? Nobody is in opposition. That is very interesting part of Indian democracy. This is a democracy how we are witnessing a transitional phase of Indian democracy. It is negative for parliamentary form of government. To some extent, yes. Then how is it good for Indian government? Again, that is point. अब देखो जो जब भी whenever we are taking a medicine is only advantageous or harmful too. दुनिया में ऐसा कोई बताओ ना इसका साइड इफेक्ट ना हो. कोई कैसा एग्जाम्पल है बताओ, सोच के बताओ अब. So whenever we are saying that it has a good impact over democracy, so largely it was good impact, but we cannot disregard some minor bad impact too. There is only. Now अब जिसकी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है इस बार के मेंस एग्जाम में, लेकिन उसका फिर भी एग्जाम्पल देखना. प्रिंटेड नोट्स में आप जानना ये बात पहले से लिखी गई है. ऐसा नहीं कि तो कोई जब भी एवोल्यूशन के फेज में आप आओगे तो दैट इज वेरी रिमार्केबल. बट व्हाट इज न्यू, बिकॉज व्हाट वी थॉट दैट एग्जामिनर विल लुक फॉर द कंटेम्प्रेरी ट्रेंड, लेकिन पीछे चला गया वो ये देखने के लिए कि आप सिलेक्टेड ही तो नहीं है. सो वी मस्ट नो एवरी बेसिक्स. दैट इज पॉइंट. अब अभी आप देखोगे नाउ वी कैन चेंज द हेडिंग. आप प्रिंटेड नोट्स में भी देख लेना. जो इस बार का एग्जाम का सवाल है वो पहले आपके प्रिंटेड नोट्स में लिखा गया है. आप फेडरल सिस्टम को उठा लेना, एक बार प्रिंटेड नोट्स चेक कर लो कि इस बार है ना कि वेदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फंक्शनल इन इंडिया. आर यू गेटिंग द पॉइंट? कैसे आप लिखोगे इसका, जब फेडरलिज्म फॉर्म को इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में बताया है. वाई फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फंक्शनल ड्यूरिंग फेज ऑफ नेहरू कोऑपरेटिव. आफ्टर कोalition government, bargaining, competition, every dispute of federalism emerged in coalition government.
Again, after arrival of one party domination after 2014, yeah, strong centralizing tendencies, but cooperative and competitive federalism is going on side by side. यही पूछा गया. फंक्शनल, यू मस्ट अंडरस्टैंड द की वर्ड. इट्स नॉट जैसे हो गया फेडरलिज्म जैसे हमने पढ़ा और हमने क्या सोच रहा 7 शेड्यूल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. एग्जामिनर ना सकता. फंक्शनल आइडिया ऑलवेज फोकस ओवर द की. एंड दैट अगर आप नोट्स में देखा होगा इस बात को मैंने डिनोट किया है कि फेडरलिज्म इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया, फंक्शनल आइडिया. मैंने इस बात को हमने लिखा हुआ है. तो दिस इज अप्रोच कि भाई एग्जामिनर कहाँ तक. एग्जामिनर तो क्या प्रोफेसर ही तो है. अरे मेरा बैचमेट ही तो है. नहीं सम टाइम मतलब यू डोंट बिलीव दैट. ऐसे इस तरह हाँकते रहते हैं. हाँकता मैं कहाँ, मैं सिंपल सिंपल बता रहा हूँ. तो देखो जब भी हम भाई 20 साल से पढ़ा रहे थे ना, एक्सपीरियंस हो जाता है ना कहाँ से क्वेश्चन, क्या कीवर्ड है, कहाँ पे हिट करना है आपको, कहाँ छोड़ देना है. भाई ये कोई कोइंसिडेंस थोड़े हो सकता है. तो ये बेसिक सी बात है. अब देखो नाउ वी आर डिस्कसिंग, वो अब इस बार का मेंस का क्वेश्चन है लेकिन इसलिए मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मेंस का है. पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, व्हेनेवर इट कम इन द पार्ट ऑफ एवोल्यूशन. सो नाउ यू कैन चेंज द हेडिंग. इंडियन पार्टी सिस्टम. अब प्रिंटेड नोट्स में जाके जरूर चेक करना ये जो होगा इसमें. नाउ यू कैन राइट द हेडिंग, इंडियन पार्टी सिस्टम इज नीदर इंडियन नॉर वेस्टर्न.